بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم سیکنڈ لیکچر شروع کرتے ہیں 9 کلاس کی کیمسٹری کا. چیپٹر نمبر ہے فرسٹ, لیکچر نمبر 2 ہے, پیج نمبر 6 ہے اور کے پی کے بورڈ ہے. سو آج ہم پڑھیں گے کچھ مین ڈیفینیشن جو کیمسٹری شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے. کل کا ٹاپک تو مطلب ایزی تھا, ویسے آج بھی ایزی ہی ہے لیکن کنسپچل ہے تھوڑا سا. سو میٹر سے شروع کرتے ہیں. آئی ہوپ آل آف یو نو میٹر ویری ویل. اینی تھنگ دیٹ ہیز ماس اینڈ آکوپائی اسپیس از کالڈ میٹر. کوئی بھی چیز جس کا وزن بھی ہو اور اس نے جگہ بھی گھیری ہوئی ہو تو میٹر ہے. اور آپ کے حساب سے ایسی کوئی چیز ہے جس نے وزن مطلب جس کا وزن ہو تو اس نے جگہ نہ گھیری ہو, یا جس نے جگہ گھیری ہو تو اس کا وزن نہ ہو؟ ہر ایک چیز کا وزن بھی ہے اور ہر ایک چیز نے جگہ بھی گھیری ہوئی ہوتی ہے. اس لیے آپ کے آس پاس جتنا بھی کچھ ہے وہ سب کچھ میٹرس ہی ہے. اگر آپ کے پاس پین ہے تو وہ بھی میٹر ہے, اگر لیپ ٹاپ ہے, موبائل ہے, جو کچھ بھی ہے, آل آف دیز آر میٹر. اور ماس کیا ہوتا ہے؟ دا کوانٹٹی آف اے میٹر ان این آبجیکٹ از کالڈ اٹس ماس. کوئی بھی چیز ہے اس میں کتنا میٹر, اب پین ہے نا, پین کے اندر کتنا میٹر موجود ہے یا پین کتنے میٹر سے مل کر بنا ہوا ہے, اس کا جو کوانٹٹی ہے, اس کی میٹر کی کوانٹٹی ان این آبجیکٹ وہ ماس کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, بڑی چیز ہوتی ہے تو مطلب اس کے اندر کوانٹٹی آف میٹر کتنی ہے, اس کا وزن کوانٹٹی, تو وہ اس کا ماس کہلاتی ہے. دیکھیے, آلموسٹ آل دا تھنگس ان یونیورس آر میڈ اپ آف میٹر بیکاز آل آبجیکٹس آکوپائی اسپیس اینڈ دے ہیو ماس. اب آ جاتے ہیں سبسٹانس کی طرف. ٹھیک ہے, ماس, میٹر, ماس اور پھر اب سبسٹانس. A piece of matter in pure form is called substance. کوئی میٹر ہے لیکن وہ بہت پیور ہے. اب واٹر ہے نا, سپوز کرو واٹر میٹر ہے, لیکن اگر واٹر 100% پیور ہو, اس میں کوئی بھی اور چیز موجود نہ ہو, صرف واٹر ہی ہو, تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبسٹانس. ٹھیک ہے, اور اگر اس میں کوئی اور چیز آ جاتا ہے تو وہ سبسٹانس نہیں رہتا, وہ مکسچر بن جاتا ہے. اس میں ایک اگر کوئی اور چیز ڈالیں گے تو کوئی دوسرا سبسٹانس اس کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے نمک ہو گیا, نمک ایک سبسٹانس ہے, واٹر دوسرا سبسٹانس ہے. جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو تب تو یہ سبسٹانس ہوتے ہیں دونوں, لیکن جب دونوں مکس ہو جائے تو وہ مکسچر بن جاتا ہے. سو کوئی بھی میٹر جو پیور فارم میں ہو, نمک ہے, صرف 100% نمک ہی ہو تو وہ سبسٹانس کہلاتا ہے, جب تک اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. پیور مینس جس میں کوئی اور چیز نہ ہو, صرف وہی ہو. جیسے پیور ملک سے مراد ہوتا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے, سارا کا سارا دودھ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر جو سبسٹانس ہے سارا کا سارا وہی ہو, اس میں کوئی اور چیز نہ ہو, 100% پیور ہو, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سبسٹانس ہے. اس میٹر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبسٹانس. ایگزامپل کیا ہے؟ پیور واٹر ہو گیا, ڈائمنڈ ہو گیا. By the word pure we means that it includes the required matter and required quantity. مطلب دودھ ہے اور 100% دودھ ہی ہے, جو چیز اس میں چاہیے وہی ہے اور اسی مقدار میں ہے جس میں اس کو ہونا چاہیے, تو وہ پیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آ جاتی ہے بات مکسچر کی. ابھی میں نے بتایا کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ سبسٹانسز وغیرہ مل جائیں تو پھر وہ سبسٹانس نہیں رہتا. وہ مطلب سبسٹانسز ہوتے ہیں لیکن اب وہ پیور نہیں ہوتے, تو ہم اس کو سبسٹانس کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ مکسچر. A matter in impure form is called mixture. اب جیسے اگر دودھ میں پانی ڈال دیا تو مکسچر بن گیا, دودھ اور پانی کا الگ الگ تھے تو پھر وہ سبسٹانس. As obvious from its name, in mixture 2 or more substances are mixed together. اس کو تو یاد کرنا آسان ہے کیونکہ مکسچر سے مراد یہ ہے کہ جو ایک دوسرے سے مل گئے ہوں, مطلب جو چیز دو یا دو چیزوں کو, 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو جب آپس میں ملا لیتے ہیں تو اس سے مکسچر بن جاتا ہے. جیسے ہو گیا جوس, سالٹ ان واٹر. مطلب اگر آپ شربت بناتے ہیں یا پھر جوس بناتے ہیں یا پھر پانی میں نمک ڈال دیتے ہیں, دیکھو پانی اور نمک الگ الگ سبسٹانس ہے لیکن مکس ہونے کے بعد کیا بنے گا؟ ان کا مکسچر بن گیا. ٹھیک ہے, سبسٹانس اور مکسچر ایک طرح سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے. سبسٹانس کا 100% پیور چیز ہوتی ہے, مکسچر جو ہوتا ہے وہ امپیور ہوتا ہے, اس میں مکسچر آف سبسٹانس ہوتی ہیں اور اس میں صرف ایک ہی سبسٹانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھتے ہیں کہ امپورٹنٹ فیچر آف سبسٹانس. آپ نے پڑھ تو دیا کہ مکسچر یہ ہوتا ہے اور سبسٹانس یہ ہوتا ہے, لیکن ان میں مطلب کیسے پہچانیں گے ایک چیز کو آپ سبسٹانس کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کچھ فیچرز ہیں, کچھ اس کے. 2 things of a substance does not change. اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ وہ سبسٹانس ہے یا نہیں ہے,
तो उसकी दो चीज़ों को देखें, वो दो चीज़ें अगर कांस्टेंट रहें, मीन्स वो चेंज ना हुई, तो वो सब्सटेंस होगा, अदरवाइज वो कौन होगा, मिक्सचर होगा। ठीक है, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू टेक दैट सब्सटेंस। अब ये नहीं है कि सपोज करो पानी है, पाकिस्तान का पानी उठाया तो कुछ और है, प्योर है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, और अमेरिका में मैंने प्योर वाटर उठाया तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, या मैंने रिवर से उठाया, मतलब वो होती है नेचुरली, क्योंकि वो सब्सटेंस नहीं होती ना, प्योर नहीं होता। जो प्योर वाटर है, चाहे वो आप दरिया से लें, चाहे आप वेल से लें, लेकिन वो प्योर हो, अब किसी तरीके से उसको प्योर करें, बाकी सारी चीज़ें उसमें से निकाल लें, तो फिर चाहे वो दरिया का हो, चाहे वो समंदर का हो, लेकिन अगर आप उसको प्योरीफाई कर लें, उसके बाद वो दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे। उनकी दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी होंगी, वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती हैं। अच्छा, तो जो चीज़ चेंज नहीं होती हम उसको कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, मीन्स के वो एक ही जगह फिक्स है। तो क्या क्या उसका फिक्स होता है, एक होती है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस और दूसरी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। कंपोजिशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कंपोजिशन से मुराद कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, और उसमें वो दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें किस रेशियो में एक दूसरे के साथ मौजूद है। आप देखेंगे जो पानी आपने कुएं से लिया है सपोज करो, और जो आपने दरिया से लिया है, फिर आपने उसको प्योरीफाई किया, मतलब कि उसमें वाटर के अलावा जो चीज़ें भी थी वो सारी हटा दी, सिर्फ वाटर रह गया, तो अब उसकी दोनों की कंपोजिशन एक जैसी होगी। ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा, वो दूसरा भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा, उसमें भी रेशियो 2:1 होगी, और दूसरे वाले में भी रेशियो क्या होगी, 2:1 होगी। यानी कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, इट इज फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स। रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स से मतलब है कि आपने कहाँ से लिया है, इस बात से आप आज़ाद हैं, जहाँ से भी लेंगे, चाहे आप सपोज करो पानी दरिया से लेते हैं, समंदर से लेते हैं, जहाँ से भी लेंगे, अगर वो सब्सटेंस होगा, यानी वो प्योर वाटर होगा, उसमें कोई और चीज़ नहीं होगी, तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, सबकी एक जैसी होगी। अगर नहीं है तो समझ जाए कि वो मिक्सचर है, वो सब्सटेंस नहीं है, यानी उसमें कोई और चीज़ है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन चेंज हो रही है। अगर उसमें सिर्फ वाटर होता तो वो उनकी दोनों की एक जैसे होनी चाहिए थी। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस भी एक जैसे होनी चाहिए। जब आप प्यूरिफाई करेंगे ना, तो सारे, चाहे वो समंदर का पानी है, चाहे वो दरिया का है, चाहे वो कुएं का है, अगर सब के सब प्यूरिफाई है तो सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, यानी सबका कलर भी एक होगा, सबका टेस्ट भी एक होगा, सब कुछ दोनों का, हर एक पानी का सेम होगा। लेकिन आप देखते हैं कि दरिया का पानी कुछ और तरह होता है, समंदर का पानी बहुत ज़्यादा साल्टी होता है, डिफरेंट होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सब्सटेंस नहीं होते, मतलब वो प्योर नहीं होते, उसमें बाकी चीज़ें मिली हुई होती हैं, जिसकी वजह से सारे मतलब दरिया का पानी कुछ और होता है और समंदर का कुछ और होता है, बिकॉज दे आर नॉट सब्सटेंसेस, दे आर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, उसमें बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं, दरिया के पानी में बहुत ज़्यादा साल्ट मिक्स हुआ होता है, जिसकी वजह से वो साल्टी हो जाता है। देख रहे हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज, क्योंकि कंपोजिशन चेंज होगी तो प्रॉपर्टीज भी साथ में चेंज हो जाती होगी जरूर। कंपोजिशन क्या है, देखिए जब भी कंपोजिशन की बात आती है ना, हम दो चीज़ें बनाते हैं, फ्रॉम विच मटेरियल या एलिमेंट अ सब्सटेंस इज मेड, एक चीज़ किस किस चीज़ से बनी है, और दूसरा इन व्हाट रेशियो द एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल आर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, जो जो चीज़ों से बनी हुई है उनके दरमियान रेशियो क्या है। देखिए H2O, H2O से मुराद है कि वाटर H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा, ये 2:1, दिस इज द रेशियो, कि मतलब हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा, दिस इज द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। अब देख लेते हैं हम कि वाटर सब्सटेंस है या नहीं। प्योर वाटर जो होता है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हर पानी जो होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा, चाहे आपने जहां से भी लिया है वो, regardless of the fact that whether the water is taken from well, river, sea or rain, जहाँ से भी आप लेंगे, लेकिन उसको प्योर करना ज़रूरी है। मीन्स के वैसे तो बारिश के पानी में कुछ अलग चीज़ें शामिल हो जाती हैं, दरिया के पानी में भी चीज़ें शामिल हो जाती है, हर पानी में चीज़ें शामिल हो जाती है, तो वो मिक्सचर बन जाता है। तो आप पहले प्योरीफाई करें, जब प्योर हो जाएंगे सारे, तो फिर आप देखेंगे कि हर पानी की कंपोजिशन क्या है, सेम है, चाहे आपने जहाँ से भी लिया हो, सबका कंपोजिशन सेम होगा, सबके सब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होंगे, और उनके दरमियान रेशियो क्या होगी, 2:1। कंपोजिशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, that is pure water will be always composed of hydrogen and oxygen in 2:1, regardless of the fact that whether the water is taken from well, river or rain, it does not changes because pure water is a substance. Pure water क्या होता है, substance होता है।
दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी. प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर इज आर आल्सो कांस्टेंट, दैट इज इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड हैज pH ऑफ 7. जब आपको प्योर करेंगे तो आप सब कुछ चेक करें, सबका कलर भी एक जैसा होगा, सबका टेस्ट भी एक जैसा होगा, जबका pH भी क्या होगा, एक जैसा होगा. आ जाते हैं. अब इसी तरह जैसे सब्सटेंस की कुछ बातें थी जिसकी वजह से हम उसको सब्सटेंस कहते थे, और अगर ना होती थी, मतलब अगर उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज फिक्स ना होती तो हम उसको सब्सटेंस नहीं कहते थे. इसी तरह मिक्सचर की भी कुछ खास बातें हैं कि वो मिक्सचर कब होता है. देखिए, इन कंट्रास्ट टू कंपाउंड, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट. तो जो देखो ये थोड़ा अपोजिट है. तो जो बातें कंपाउंड के लिए हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉपर्टीज कंपाउंड की होती है वो मिक्सचर की नहीं होती. अगर हमने कह दिया कि कंपाउंड जो है, सॉरी सब्सटेंस जो है उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट होती है और उसकी प्रॉपर्टीज भी कांस्टेंट होती हैं, तो अब मिक्सचर की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या है, कांस्टेंट नहीं होती, ये चेंज होती रहती है. अब जैसे चीनी में सपोज करो शरबत बनाते हैं ना सब, तो मिक्सचर होता है, वो चीनी और पानी मिक्स हो जाते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है. तो अब देखिए, मैं शरबत बनाती हूँ तो उसका टेस्ट अलग होगा, कोई दूसरा बंदा बनाता है उसका टेस्ट अलग होगा. तो ये मिक्सचर की देखो प्रॉपर्टीज भी उसकी चेंज नहीं हुई. प्रॉपर्टीज क्यों चेंज, मतलब चेंज हो गई हैं, प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. एक मिक्सचर की प्रॉपर्टीज मतलब उन्हीं चीज़ों का मिक्सचर होगा, मतलब आपने भी तो चीनी और पानी ही मिलाया है, मैंने भी चीनी और पानी ही मिलाया है, लेकिन फिर भी दोनों का टेस्ट चेंज है. ठीक है, वाई? क्योंकि हमने कंपोजिशन जो है, मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं है. किसी ने रूल नहीं दिया कि हाँ आपने एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी डालनी है, ये कोई रूल नहीं है, हर किसी की अपनी मर्जी है. यानी कि उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हैं. तो कंपोजिशन चूंकि कांस्टेंट नहीं है, हर बंदे की अपनी मर्जी है, तो आपने अलग अमाउंट ऑफ सपोज करें आपने 1 चम्मच डाला होगा, मैंने 2 चम्मच डाले होंगे, जिसकी वजह से हमारे मिक्सचर्स की जो कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट हो गई और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई. यानी कि ये कांस्टेंट नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती. और एक ही बंदा अगर दूसरी बार शरबत बनाएगा तो उसकी भी चेंज हो सकती है. सपोज कर मैंने ही पहली बार शरबत बनाया वो मीठा था, दूसरी बार बनाया तो वो मीठा नहीं था. मतलब कि मिक्सचर के लिए कोई रूल नहीं है कि उनकी कंपोजिशन फिक्स होगी और उनकी प्रॉपर्टीज फिक्स होगी, बल्कि इनकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होते रहते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते. इट चेंजेस फ्रॉम सोर्स टू सोर्स. ठीक है, सपोज करो एक बंदे से मैंने सोर्स टू सोर्स मीन्स कि आपने कहाँ से लिया वो मिक्सचर, आपने कहाँ से लिया. देखो रेन वाटर भी मिक्सचर होता है, सी वाटर भी मिक्सचर होता है, लेकिन दोनों के टेस्ट वगैरह सब कुछ क्या होता है, चेंज होता है. बिकॉज द कंस्टिट्यूशन ऑफ मिक्सचर, constituents of mixtures are not combined in fixed ratio. यानी कि कैद नहीं है कि इतने, सपोज करो अगर रेन वाटर में इतना एसिड है तो सी वाटर में भी उतना एसिड हो, ये फिक्स नहीं है. रेशियो उनके दरमियान फिक्स नहीं है, इसलिए जब रेशियो फिक्स नहीं है तो उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है. कंपोजिशन चेंज होती है तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. कंपोजिशन से मतलब है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और कितने रेशियो में. तो अगर हमारी चीज़ें सेम भी हों लेकिन उसकी रेशियो सेम नहीं रहती, तो इसलिए मिक्सचर की प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन दोनों चेंज होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिवर एंड सी वाटर बोथ आर मिक्सचर. चाहे वो समंदर का पानी है चाहे वो रिवर का पानी है, दोनों ही मिक्सचर है. लेकिन आप देख लेते हैं कि दोनों का टेस्ट वगैरह सब कुछ चेंज होता है, बट दे हैव डिफरेंट कंपोजिशन. क्यों? क्योंकि उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है. तो कंपोजिशन डिफरेंट होती है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, डिफरेंट होगी. कंपोजिशन से मुराद है कि दोनों में एक ही किस्म की चीज़ें हो. सपोज करो मैं जूस बना रही हूँ और आप भी जूस बना रहे हैं, मैंने भी सपोज करो एप्पल मिल्क और वाटर डाल दिया और शुगर डाल दिया, आपने भी यही चीज़ें डाल दी. लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जितना शुगर मैंने डाला है उतना ही आप डालें, जितना पानी मैंने डाला है उतनी ही आप डालें, जितना मिल्क मैंने डाला है उतनी ही आप डालें. अगर हम सब कुछ कांस्टेंट रखेंगे ना तो हमारे जूस का जो टेस्ट होगा सब कुछ एक जैसा होगा. लेकिन अगर हम ये सब थोड़ी सी भी चेंजेस आ जाती हैं तो उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ हो गई. आपने थोड़ी ज़्यादा चीनी डाली है तो आपका थोड़ा ज़्यादा मीठा होगा. तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती हैं, देखो मतलब कंपोजिशन चेंज हो गई तो प्रॉपर्टीज़, उसका टेस्ट, कलर वगैरह सब भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है. तो ठीक है, तो कंपोजिशन सब्सटेंस की फिक्स होती है इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स होती है, लेकिन मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं रहती और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, फिर फिक्स
नहीं रहती, क्योंकि ये मिक्सचर है। मिक्सचर मीन्स कोई खेद नहीं है, बस दो चीज़ों को मिक्स करो, चाहे क्वांटिटीज जितनी भी हो, ठीक है। तो जब कैद ही नहीं है तो कंपोजिशन फिक्स नहीं है, कंपोजिशन फिक्स नहीं है तो प्रॉपर्टीज भी फिक्स नहीं रहती। देखिए, लाइक सी वाटर इज साल्टी बट रिवर वाटर इज नॉट दैट मच साल्टी, ये सबको पता है। सो अभी आपको पता चलेगा कि मिक्सचर में क्या बातें होती हैं। मिक्सचर की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज कांस्टेंट नहीं होती, जबकि सब्सटेंस की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होती है। ये दो डिफरेंस है दोनों में बिग। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, देखो मैटर होता है सबसे पहले। मैटर कोई भी चीज़ जिसका कोई स्पेस लेता हो और जिसका वजन हो, तो फिर अगर वो उस मैटर की प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन कांस्टेंट हो, देखो डज इट हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन, वो सवाल पूछ रहे हैं ना कि क्या इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज फिक्स है। अगर जवाब है यस, मतलब आपने देखा कि आपने जो सब मैटर लिया है उनकी ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती, तो फिर वो सब्सटेंस होगा। लेकिन अगर वो चेंज होती है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज और सब्सटेंसेस कांस्टेंट नहीं है, नो मीन्स कांस्टेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर। फिर मिक्सचर दो किस्म का होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, होमो का मतलब है सेम थ्रू आउट। सपोज करो अब अगर पानी में नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं, तो हर जगह एक ही चीनी होती है। सपोज करो एक गिलास से आप शरबत पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं, तो जो पहले सिप का टेस्ट होता है दूसरे सिप का भी ऑलमोस्ट वही टेस्ट होता है ना। ये तो नहीं है कि पहला सिप आपने लिया वो मीठा था, दूसरा सिप लिया वो फीका था, ऐसा नहीं होता ना। यूनिफॉर्म मीन्स कि जितना भी वो सब्सटेंस है हर जगह उसकी कंपोजिशन क्या है, इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो ऐसी चीज को कहते हैं होमोजीनियस। जैसे साल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, ये सारी होमोजीनियस होती है, जितनी भी जूसेस आ जाती हैं हमारे पास। लेकिन हेट्रोजीनियस को देखें, लेकिन आप मट्टी डालते हैं पानी में, तो क्या हर जगह एक जैसी मिट्टी जाती है, नहीं जाती ना, कुछ नीचे ज्यादा होती है ऊपर कम होती है। तो ऐसा जब कुछ कहीं पर कंपोजिशन एक जैसी हो, दूसरे पर कंपोजिशन डिफरेंट हो, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मतलब थ्रू आउट सेम कंपोजिशन ना हो, तो ऐसी चीज को, ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनियस। सैंड डाले पानी में तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि वो यूनिफॉर्म नहीं होती उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट। तो दिस टू आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हम इसको बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे विद मोर एग्जांपल्स। सब्सटेंस की भी दो टाइप्स आ जाती हैं अगर हमारे पास। कैन इट बी सिंप्लीफाइड केमिकली, मतलब आप किसी तरीके से उसका रिएक्शन करवा के उससे कोई आसान, कोई सिंपल सा सब्सटेंस बना सकते हैं। अगर आप उससे बना सकते हैं तो वो कंपाउंड होगा, मतलब आप उसको तोड़ पोड़े, अगर आप उसको तोड़ सकते हैं किसी तरीके से और उससे मजीद छोटे छोटे सब्सटेंस बन सकते हैं सिंपल, तो वो कंपाउंड होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, एलिमेंट रहेगा, ठीक है। अगर वो सिंपल नहीं हो सकता, आप जैसे गोल्ड को लेंगे, जो जो प्योर गोल्ड होता है, यानी कि गोल्ड के अलावा उस पर कुछ नहीं होता, तो वो सब्सटेंस होता है। लेकिन वो कौन सा सब्सटेंस होता है, वो एलिमेंट होता है। एलिमेंट का मुराद है कि हम उसको हीट करें, कुछ भी करें, उससे मजीद कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं बनने वाला। ऐसा नहीं हो सकता कि गोल्ड से आयरन बन जाए, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड मजीद सिंप्लीफाई या डिकम्पोज नहीं होता, ब्रेक डाउन उसकी पॉसिबल नहीं है। अब इसको जितना भी तोड़े वो गोल्ड ही रहेगा। हाँ, तो प्रॉपर, अच्छा तो ये हो गया, ठीक है। अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। ओके, तो अगेन, अच्छा, सो दिस इज लेक्चर नंबर 3, वी विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। तो अभी तक आप यहाँ तक अंडरस्टैंड कर ले।